in taking of cognizance by the magistrate, a judicial element, an independent element. He may or may not take cognizance. There is an amendment to the law which says that before Mr. Judge you take cognizance, you must issue notice to the potential accused. Miss Natarajan only received a notice to come to the court and tell the court why cognizance should not be taken. That means the notice she received was before any cognizance was taken. Number 3, any kindergarten and first year law student knows that without cognizance, no criminal case exists in the eyes of law. There is no criminal case merely if I allege something against somebody else without a cognizance taken. Number 4 is more absurd. You have rejected Ms. Natarajan's nomination on the non-existence of even cognizance, which means there is no criminal case which she could have disclosed. But you have done it at the first stage, whereas the section which I have just read to you, 33A, says that after cognizance, if it is taken, then there will be investigation. After investigation, there will be charge sheet. That is not enough. The section says after charge sheet, the judge must frame charges. Had the judge reached the stage of framing charges, she would be obliged to disclose. It is a bizarre thing that the judge, that the RO has rejected it, saying that there is cognizance. The word used is Sangyan in the RO's order. Sangyan means cognizance. There is no cognizance taken. Ultimately, also we pointed out to the Election Commission that they are having a huge reservoir of power under Article 324. It's a constitutional power. It is uncircumscribed power. It is inherent power. It is power to do justice and power to right wrongs. If a RO improperly throws out a nomination paper on the ground that the color of his hair is black or that he is resident of some other state, nobody has to wait to go to court. Nobody has to file an election petition and waste 3, 4, 5, 6 years. The main body which has 324 is sitting here, and that reservoir of powers to do corrective justice must be exercised by them immediately. That is what we have asked. This has been done by them in a Haryana precedent where the RO was wrongly rejecting 2 nominations. This has been done earlier by them in a Gujarat precedent. We have given all those notes and papers to them. We hope and trust that the EC will realize that this creates a very bad, distorted, non-level playing field. A non-level playing field strikes at the heart of democracy. A violation of that strikes further at the heart of the basic structure of the Constitution. And they should, therefore, we have requested them for an immediate decision. We have come on the day of withdrawal. There is sufficient time. This is a completely egregious, blatant, patently unlawful, without law order. And it should be set aside immediately is our request. Thank you very much. तो दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला है कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुलाकात के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद ये मुलाकात हुई है, और केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल डेलीगेशन में शामिल। कांग्रेस ने फैसले के खिलाफ जताया है विरोध। तो भोपाल में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने पर कांग्रेस का उपवास, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस का उपवास, जीतू पटवारी समेत कांग्रेस नेता उपवास पर बैठे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक चुनाव आयोग ने अभी हमारी सुनवाई की है और अब हम वेट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? हम हमारी लड़ाई में हैं। हमारा आज भी विश्वास है कहीं न कहीं लोकतंत्र में अब भी कोई न कोई प्रकार की लोकतांत्रिक शुचिता बाकी हो। कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है क्या? हमारे तरफ से हमारे सीनियर लॉयर्स ने अपना सवाल रखा है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम इलेक्शन कमीशन से आपको फोन आ रहा है। आपको लग रहा है कि आज इधर बैठिए, जल्दी बैठिए।
But in Jharkhand, sir, in Jharkhand, your people. From the election commission, sir. Usually they told that they will look into it. That is the. But in Jharkhand, your people are sitting outside the Vidhan Sabha for action against Parimal Nathwani. But in Natarajan's case, the decision was taken yesterday only. How do you see this? Everything already told. Nothing else. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, जिसके बाद कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला है। अभी आप मीनाक्षी नटराजन को भी सुन रहे थे कि वो साफ तौर पर कह रही हैं कि अभी हमने हार नहीं मानी है और अब दिल्ली में मुलाकात हुई है ईसी से, यानी कि चुनाव आयोग से कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। और भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भोपाल में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उपवास पर बैठ गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने फैसले के खिलाफ जताया है विरोध। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला है कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की तरफ से की गई है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद की है मुलाकात। केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल डेलीगेशन में शामिल रहे। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने फैसले के खिलाफ जताया है विरोध और भोपाल में भी अब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उपवास पर बैठ गए हैं। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद चुनाव आयोग से दिल्ली में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल डेलीगेशन में शामिल रहे हैं और मुलाकात हुई है। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग से मिला है कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला है कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। देखिए, चुनाव आयोग को डेलीगेशन मिला है और अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दरअसल में कांग्रेस का जो डेलीगेशन मिल के आया है, उनका ये पूरा उनका जो कहना ये है कि पूरी तरीके से निराधार आधार पर इनके नामांकन को रद्द किया गया है, क्योंकि कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता है, ना तो कोई सजा याफ्ता है हमारा कैंडिडेट। और उन्होंने ये भी हवाला दिया, कई राज्यों में पहले भी ऐसा हुआ है कि इस तरह के उसे पुनर्विचार किया गया है और कैंडिडेट को बरकरार रखा गया है। अपनी बात रखा उन्होंने और बताया कि किस तरीके, लेकिन इसमें जो चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी मिल रही है वो ये कि जो नियम ये कहता है कि जो फैक्ट आपने छुपाए हैं उसके आधार पर रद्द हुआ है और उनको इसके लिए मौका भी दिया गया। जब अभिषेक मनु सिंघवी से ये बात पूछी गई कि रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या मौका दिया था, इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कोई भी एक सवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों के नहीं लिए गए। बहरहाल कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बना रही है और कांग्रेस ने इसे ये कहा है कि चूंकि आज आखिरी दिन है, आज संभव है, तो अब देखते हैं कि इस पर क्या फैसला चुनाव आयोग लेता है। कमीशन के सामने करीब 1 घंटे तक बैठक चली है, जिसमें तमाम बड़े नेता कांग्रेस के मौजूद थे और कांग्रेस का पक्ष यही है कि चूंकि कोई क्रिमिनल केस नहीं था और कोर्ट ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया और जो नियम के मुताबिक 2 साल की से ज़्यादा जिसकी सज़ा है वो अयोग्य होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। चुनाव आयोग के तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो तथ्य छुपाए गए कि कोई भी नोटिस अगर आया है जो कैंडिडेट के संज्ञान में था, उसकी जानकारी छुपाई गई और जब छुपाई गई तो उनको समय नोटिस देख के पूछा भी गया कि इसके बारे में बताइए, तब भी कोई जवाब नहीं आया, इसलिए उनका कैंडिडेचर रद्द किया गया, नामांकन उनका रद्द हुआ। अब देखना है कि बैठक के बाद क्या चुनाव आयोग की तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया आती है, क्या वो कुछ इस पर बताते हैं कि क्या अंदर बात हुई। कांग्रेस डेलीगेशन ने अपनी बात कही, तो अब सवाल यही उठता है कि क्या इनको वाकई में समय दिया गया था मीनाक्षी नटराजन को कि जो
जो आरोप है कि आपने तथ्य छुपाए, उस तथ्य के बारे में अगर दोबारा जानकारी दे दी जाती तो नियम में कहता है कि इनका नामांकन बना रहता। कोई न कोई प्रकार की लोकतांत्रिक शुचिता बाकी हो। हमारे तरफ से हमारे सीनियर लॉयर्स ने अपना सवाल रखा है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैम इलेक्शन कमीशन से आपने मुलाकात की आज? प्रशांत भी हमारे साथ लगातार जुड़े। देखिए प्रशांत, प्रतिक्रिया भी आ चुकी है और अब बड़ा सवाल यही उठता है कि अब चुनाव आयोग आगे क्या फैसला करेगा। क्या जो छिपाए गए थे तथ्य जो बीजेपी ने इसे लेकर आपने देखा था कि इस मामले को उठाया था, तो क्या अब दूसरी बार मौका मिल सकता है? क्योंकि देखिए आज आखिरी दिन है, क्या लगता है आपको? देखिए आज आखिरी दिन है और बहुत कम ऐसा होता है, मतलब इस केस में, इस तरह के केस में कि शायद मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक तस्वीर अगर आप देखिए कि 3 कैंडिडेट, मतलब 3 सीट थी और 3 सीट पे 4 कैंडिडेट थे, यानी कि 3 बीजेपी ने खड़े किए, एक मीनाक्षी खड़ी हुई नटराजन कांग्रेस की तरफ से। 58 सीट जीतने के लिए चाहिए, तो 2 सीट तो हर हाल में बीजेपी जीत रही थी। महेश केवट तीसरे उम्मीदवार थे, इनको 10 वोटों की कमी पड़ रही थी। और मीनाक्षी नटराजन का अगर फॉर्म सही होता, सब कुछ ठीक होता, तो जीत उनकी हर हाल में निश्चित थी, क्योंकि उनके पास 62 वोट थे। जीतने के लिए उनको 58 वोट चाहिए थे, 58 वोट चाहिए थे, हर हाल में जीतते। अगर ये बात सच है कि उनको चुनाव आयोग ने मौका दिया कि ये तथ्य हमारे सामने आए, इसको करेक्ट करिए, बताइए, वो भी नहीं बताया गया, तो अब सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। ये इस पर भी कांग्रेस के डेलीगेशन ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि मीनाक्षी नटराजन की जब फॉर्म की स्क्रूटनी की जा रही थी तो उस वक्त ये तथ्य सामने, और उसके बाद जो शिकायत की बीजेपी ने कि इनके खिलाफ संज्ञान कोर्ट ने नोटिस जारी किया, जो तथ्य छुपाया गया, इसके बारे में इनसे जब पूछा गया और कोर्ट ने कोई नोटिस दिया था, तो उस नोटिस को अगर वो समय रहते चुनाव आयोग को दे देती तो उनका कैंडिडेचर रद्द नहीं होता, वो बनी रहती और जीत भी जाती जी, क्योंकि उनको 58 वोट चाहिए थे जीतने के लिए और उनके पास 62 वोट थे। 64 की संख्या है, 2 अयोग्य हैं, 62 वोट उनके पास थे, उनके पास 62 वोट थे और वो जीत जाती, 58 वोट से बड़े आराम से जीत जाती। बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट महेश केवट, उसकी हार हो जाती, उनकी हार हो जाती। तो ऐसा लगता है कि ऐसा अज्यूम किया गया है कि बीजेपी तोड़ लेती या क्रॉस वोटिंग हो जाती, ये अज्यूम किया गया। अब ये डर क्यों हुआ, ये अभी ये सब सवाल है। लेकिन अभी जो तस्वीर आपको साफ दिखाई जो देख रही है कि 2 कैंडिडेट तो बीजेपी के बड़े आराम से जीत ही रहे थे, 58। बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर एक टफ फाइट था।